Year 1979, name of the vessel, motor tanker Betelgeuse. Explosion happened. 50 lives were lost. Year 2004, name of the vessel Bow Mariner. 21 lives were lost. Year 2006, Front Sunda. Explosion. 1 life was lost. And what if I told you that none of the 3 vessels were even loaded with cargo? Yes, you heard that right. They were only and only in ballast condition. All they had was pure vapors. So what went wrong? What happened? How can we prevent such accident? And these are the 3 names which I have given you. There are numerous accidents and explosions which have happened, and that is where the topic of the day comes into picture. So let us start the video. So hello and welcome, I am Captain Umang, this is Nav Insider. Topic of the day, flammability diagram. हमेशा की तरह आसान भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा, and I hope you will understand this concept very well. It will help you when you're sailing, it will help you when you're giving your exams. Let us begin. So before understanding flammability diagram, हमें एक बहुत important concept समझना है जिसका नाम है fire tetrahedron. Some of you must have heard only fire triangle, लेकिन fire tetrahedron, ठीक है, triangle के 3 साइड होते हैं, tetrahedron के 4 साइड होते हैं. When you talk about fire triangle, that is also correct concept. Tetrahedron is also correct concept. तो कौन से टाइम कौन सा यूज करना? See, when you talk about triangle, it is for general safety, primary level, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, उनको अगर आप समझाना चाहते हो देन फायर ट्राइंगल इज अप्रोप्रिएट. बट इफ यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ प्रोफेशनल, इफ यू आर डूइंग समथिंग प्रोफेशनली लाइक मैरीटाइम इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, जो भी जितनी भी हमारी इंडस्ट्री ऑफशोर, देयर वी हैव टू यूज वर्ड टेट्राहेड्रॉन. अब ये 4th साइड कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रीजन इज देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वेपर एयर केमिस्ट्री विच वी गो थ्रू एज अ प्रोफेशनल, एंड दैट इज वाई फॉर अस द करेक्ट टर्म इज फायर टेट्राहेड्रॉन. नथिंग रॉन्ग, इवन इफ यू राइट फायर ट्राइंगल, वो गलत नहीं है. Only thing is when you write fire tetrahedron, you are making it clear to the examiner that you know your concepts. Now let us talk about fire triangle. जो हमारा traditional fire triangle है उसमें 3 साइड है, fuel, oxygen and source of ignition. Some books writes heat or spark, that is also correct, but the technical term is source of ignition. आपके पास अगर source of ignition होगा तो fire होने के chances है. तो इस triangle का मतलब क्या है? इस triangle का मतलब है when you have fuel, when you have oxygen and when you have source of ignition, जब ये तीनों एक साथ आएंगे there is going to be a fire. इससे आग लगेगी. तो आग बुझानी कैसे? हाउ टू एक्सटिंग्विश? आग बुझानी है, जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हो उसी सीढ़ी से नीचे आते हो. सेम, अगर 3 चीजों से फायर बन रही है, कोई भी एक साइड तोड़ दो, कोई भी एक पैर इसका तोड़ दो, आपकी फायर जो है बुझ जाएगी. आइदर यू रिमूव द फ्यूल, आइदर यू रिमूव द ऑक्सीजन और यू रिमूव द सोर्स ऑफ इग्निशन, एंड दैट इज वेयर द हीट और स्पार्क इज अ करेक्ट टर्म ओनली आफ्टर द फायर हैज अकर्ड. ओके, सो इन तीनों में से आप कुछ भी निकाल दो, आपकी फायर बंद हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, जब आप आपकी गाड़ी की चाबी बंद करते हो, व्हेन योर बाइक और कार इज रनिंग, व्हेन यू स्विच इट ऑफ, व्हाट हैपेंस? योर फ्यूल पंप स्टॉप्स. इफ इंजन डजंट गेट फ्यूल, engine is going to stop. That is how we stop and start our cars. Okay, so when you remove the fuel, the method is called as starvation. आप भूखा मार रहे हो, you are starving the fire. So when you remove the fuel, it is called as starvation. When you remove the oxygen from the fire, it is called as smothering. What is it called? It is called as smothering. What type of extinguisher uses smothering? CO2 extinguisher. Carbon dioxide generally uses smothering effect. Okay, if you remove the source of ignition, if you remove the heat or spark, the method of firefighting is called as cooling. तो ये तो हो गया फायर ट्राइंगल की बात. अब बात करते हैं फायर टेट्राहेड्रन. टेट्राहेड्रन का 4th साइड है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CR, चेन रिएक्शन. इसका जो 4th साइड है, if you want to break the chain reaction, you have to use DCP टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर. एंड इसीलिए DCP को, जैसे इसको स्मोथरिंग, इसको स्टारवेशन बोला जाता है, DCP टाइप को इनहिबिशन बोला जाता है. what does it do? It inhibits the chain reaction. ये चेन रिएक्शन को तोड़ता है, जिसकी वजह से आपकी फायर कंटिन्यू नहीं होती. Remember, DCP will only come into action once there is fire. उसके बाद वो chain reaction तोड़ेगा and then fire is going to subside. So I hope you have understood the fire tetrahedron. Now with this understanding, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड. आप ऑयल टैंकर पे सेल कर रहे हो, क्या आप फ्यूल को अवॉइड कर सकते हो? वी कैन नॉट अवॉइड फ्यूल. वाई वी कांट अवॉइड फ्यूल? बिकॉज यही हमारा कार्गो है सर. इफ यू डोंट लोड द कार्गो, तो आपने शिप क्यों बनाया? कैन वी अवॉइड ऑक्सीजन? येस, वी डेफिनेटली कैन अवॉइड ऑक्सीजन बाय यूजिंग इनर्ट गैस. व्हेन यू हैव इनर्ट गैस, वी कैन अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द टैंक्स. इनर्ट गैस मतलब जो हमारे केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते थे, हेलन, आर्गन, वो सब इनर्ट गैस हम यूज नहीं करते. इनर्ट गैस फॉर अस इज ओनली अ गैस जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट
कम हो, कितना कम हो ये हम आगे देखेंगे, वी विल सी। एंड कैन यू अवॉइड सोर्स ऑफ इग्निशन? यू कैन कंट्रोल इट, यू कैन सर्टनली कंट्रोल इट, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट इट। तो सोर्स ऑफ इग्निशन की बात करें तो देयर आर कंट्रोल इन प्लेस, बट वी कांट एलिमिनेट इट। इवन नॉर्मल रोलिंग जिसमें ऑयल जो है स्लॉश होगा इनसाइड द टैंक, दैट कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वी कैन कंट्रोल, वी कांट एलिमिनेट। तो हमारे पास एक ही जगह बची है जिसको हम तोड़ सकते हैं, एक ही पैर बचा है जिसको हम तोड़ सकते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, and that is where the whole concept of flammability diagram revolves around. So let us understand the flammability diagram now. Flammability diagram पे जाने से पहले let us understand few key concepts which are important for understanding the diagram. सबसे पहले बात चल रही है, remember ये flammability diagram का पूरा concept tanks पे applicable है, which means there is a limited amount of space, 100% volume से ज़्यादा total नहीं हो सकता, यानी you cannot have oxygen 20.9% and fuel as 100% by volume, not possible, यानी जगह limited है। जितना ही मुश्किल मुंबई में घर लेना है उतना ही मुश्किल टैंक में जगह पाना है, विच मीन्स अगर एक गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो दूसरे गैस का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कम होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे एक बहुत की कॉन्सेप्ट है, ओरल क्वेश्चन है जो आगे पूछा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा डायग्राम में, बट अभी के लिए समझ लो होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेमेबिलिटी डायग्राम इज एप्लीकेबल टू टैंक्स, विच मीन्स देयर इज लिमिटेड स्पेस, 100% वॉल्यूम इज द फाइनल, सबका मिला के कॉन्फ़िगरेशन 100% वॉल्यूम होना चाहिए। सेकंड इज कंबशन, ऑक्सीजन जो है मिनिमम 11% चाहिए, इससे कम ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी, कंबशन नहीं होगा। अगर आपके रूम में 11%, आपके रूम में या टैंक में 11% से कम है ऑक्सीजन, देन देयर कैन नॉट बी फायर, नॉट पॉसिबल। नाउ सर्टेन प्लेसेस इसको 11.5 लिखते हैं, 11.2 लिखते हैं, तो सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप ऑफ टेक्निकलिटी, 11.2 करेक्ट है, 11.5 करेक्ट है, यू टेक अ सेफर फिगर 11%, इट इज अप टू यू, बट 11% इज रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लेमेबिलिटी डायग्राम को यूनिवर्सल डायग्राम नहीं है कि इस गॉट 6th एडिशन में ये डायग्राम छपा है, मैं उसी के हिसाब से लाइन ड्रॉ करके आगे देखूंगा, खींचूंगा एंड आई विल बी सेफ। नो, एवरी गैस हैज इट्स ओन फ्लेमेबिलिटी डायग्राम। जो आपको ISGOT 6th एडिशन में दिया गया, दैट इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस, दैट इज अ जनरल डायग्राम, दैट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द कार्गो दैट यू आर लोडिंग। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ऑन द सेफर साइड। फोर्थ कॉन्सेप्ट है LFL एंड LEL, लोअर फ्लेमेबल लिमिट, इसी का दूसरा नाम है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। इसका मतलब यह है कि आपका जो गैस का कॉन्सेंट्रेशन है, जो हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेंट्रेशन है, वो टैंक में इतना कम है कि देयर आर नॉट इनफ हाइड्रोकार्बन वेपर्स फॉर द फायर टू अकर, विच मीन्स आप लोअर लिमिट से कम हो। और सेम है अपर फ्लेमेबल लिमिट और UEL। इसमें क्या होता है कि गैस का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा होता है टैंक में कि फिर भी कंबशन सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो लोअर फ्लेमेबल लिमिट, अपर फ्लेमेबल लिमिट, इसको आसान भाषा में समझते हैं। सपोज आप चाय बना रहे हो, आप 1 ग्रेन शक्कर डालो, एक छोटा सा ग्रेन शक्कर डालो, आपकी चाय बहुत कड़वी होगी, बिकॉज यू आर लोअर देन द लोअर फ्लेमेबल लिमिट। और उसी के सामने चाय में शक्कर का पूरा डब्बा डाल दो, अगेन यू विल नॉट एंजॉय योर टी। वाई? बिकॉज यू आर ओवर द अपर लिमिट। सो अपर लिमिट से ऊपर, लोअर लिमिट से नीचे अगर है तो कंबशन नहीं होगा। इसके बीच में तो आपकी चाय तो जरूर अच्छी लगेगी, लेकिन टैंक अच्छा नहीं रहेगा, दे कैन एक्सप्लोड एनी टाइम, इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम इफ यू डोंट कंट्रोल योर ऑक्सीजन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, टैंक कार्गो के वेपर प्रेशर है, फ्लैश पॉइंट है, दे आर ऑल गिवन बाय एनर्जी इंस्टीट्यूट। ये एक लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। रिमेंबर, दिस इंस्टीट्यूट हैज इवॉल्व फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IP करके इंस्टीट्यूट था, उससे एनर्जी इंस्टीट्यूट इवॉल्व हुआ है, एंड दे डिसाइड कि कौन से कार्गो का कितना लोअर फ्लेमेबल लिमिट या अपर फ्लेमेबल लिमिट है। जो आपको MSDS में डेटा मिलता है ना, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका काम है। रेगुलरली दे अपडेट दिस वैल्यूज एंड दे आर द वंस हु गिव ए स्टैंडर्ड। ये बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, दे टेक द साइंटिफिक। ये कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि IMO ने या ISGOT ने डिसाइड कर दिया और आपको छाप के दे दिया। इट इज द एनर्जी इंस्टीट्यूट विच इज गोइंग टू डिसाइड कि कितना लोअर फ्लेमेबल लिमिट है, इसको रिवाइज करने की जरूरत है कि नहीं, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टडिंग एंड रिसर्चिंग एवरी डे। सो दैट इज वाई दिस लिमिट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड जब बात एनर्जी इंस्टीट्यूट की चल रही है, तो आई विल गिव यू एन प्रो टिप, I will give you something which you can use practically. Energy Institute के काफी सारे publications हैं. One of them is HM40, Hydrocarbon Management 40. ये crude oil washing के बारे में बात करता है. Crude oil washing मतलब काऊ तो है, बट क्रूड को कैसे धोया जाता है, ऐसे इसके बहुत सारे पब्लिकेशन है. तो आप बहुत बार सोचते हो कि चार्टरर आपको कहाँ से इंस्ट्रक्शन ला के दे रहा है कि पहले हॉट वाटर वॉश करो, सॉल्ट वाटर वॉश करो, फ्रेश वाटर वॉश करो. द बेस इज दिस. ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर इन डाउट, इफ यू आर ऑन बोर्ड, डाउनलोड द रेलिवेंट पब्लिकेशन. अगर आप प्रोडक्ट टैंकर पे हो तो प्रोडक्ट की पब्लिकेशन डाउनलोड कीजिए, क्रूड पे हो तो क्रूड की डाउनलोड कीजिए, विच इज HM40, एंड यू विल गेट अ यूनिवर्सल गाइडलाइन. दिस इज पब्लिश्ड बाय एनर्जी इंस्टीट्यूट. ये एक प्रो टिप. प्रैक्टिकली अगर आप ऑयल टैंक वॉशिंग्स कर रहे हो या और
और भी कोई ऑपरेशन कर रहे हो, प्लीज रिफर टू एनर्जी इंस्टीट्यूट पब्लिकेशंस, यू विल गेट देयर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्लेमेबिलिटी डायग्राम। बहुत ही आसान डायग्राम है, यू विल अंडरस्टैंड इट इन फर्स्ट गो। वाई एक्सिस पे, ये जो वर्टिकल एक्सिस पे, यहाँ पे मैंने हाइड्रोकार्बन बनाया, ओके, दीज आर द पेट्रोलियम वेपर्स। ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव मेड oxygen, okay. Now oxygen in the air is somewhere here 20.9%, that is what our meter shows, our gas meter shows, okay. Now why this line is sloping, this line is why it is tilted. Yeah, this is one of the oral questions. I don't know if it is still being asked or not, but this used to be a question. It is tilted because याद करो मैंने आपको अभी बताया था कि टैंक में लिमिटेड स्पेस है। So as you are going up the x-axis, what is happening is हाइड्रोकार्बन का जो कंटेंट है वो टैंक में बढ़ते जा रहा है स्लोली। तो इसी वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट थोड़ा कम होगा, बिकॉज रिमेंबर मारामारी ऑफ द स्पेस, सेम थिंग। इसीलिए मैंने आपको पहले वो चीज बताया था कि टैंक में लिमिटेड स्पेस ऑफ वॉल्यूम है, एंड दैट इज वेयर इफ योर हाइड्रोकार्बन इज इंक्रीजिंग, ऑक्सीजन इज बाउंड टू ड्रॉप। ये इतना स्लांट नहीं होता है, दिस इज जस्ट सो दैट यू अंडरस्टैंड इन द वीडियो, एंड दिस डायग्राम आई हैव ड्रॉन, इट मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट, बट दिस इज जस्ट फॉर योर reference, so that with the increased concentration of hydrocarbon on y-axis, there will be reduction in concentration of oxygen on the x-axis. Now I am slowly building up the diagram. Please be with me. ये देखिए, when you have oxygen that is more than 11%, okay, जब आपके पास oxygen है, fire can occur. Do we all agree that it supports a combustion? But if the concentration of hydrocarbon is less than LEL, if it is less than LEL, what is going to happen? There are not enough vapors of hydrocarbon to catch fire, and this condition we call it too lean. What do we call? The condition is too lean. Similarly, अगर आपका हाइड्रोकार्बन वेपर बहुत ज्यादा है टैंक में, तो ये क्या हो जाएगा मिक्सचर, इस मिक्सचर को हम कहते हैं टू रिच, इसमें भी आग नहीं लगेगी। तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोकार्बन LEL और UEL, LFL और UFL के बीच में है, तभी ही आग लगेगी, which is this zone, and that zone is called as flammable zone. Now this flammable zone can we avoid? We cannot avoid, and I will tell you why we can't avoid. Only thing is, while we are negotiating this flammable zone, while we are going through, we need to have protection of oxygen. 11% के इस साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड, between 0 to 11%, this is inert condition, again fire cannot occur. What does ISGOT say? ISGOT says कि okay fine agreed, आपका combustion 11% पे हो रहा है, आप टैंक में 8% रखोगे, तो ISGOT standard is 8% inside the tank. I will repeat once again. What does ISGOT say? कि आपके टैंक में at any given point of time the concentration of oxygen should not be more than 8% by volume. And इतना ही नहीं, ISGOT goes on to say कि आपका जो IG plant है, the inert gas plant, जो आपका boiler हो या inert gas generator हो, when it is delivering, the delivery of oxygen from the plant should not be more than 5%, which means IMO expect कर रहा है कि 5% से कम में ऑक्सीजन आपका प्लांट डिलीवर करेगा। मान लो कि लाइन में कहीं लीक है, बाहर से हवा घुस रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तब भी टैंक में जाके 8% से कम रह पाएगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड दैट ISGOT हैज पुश्ड, सो दैट जो इंसिडेंट्स मैंने बताया वो ऐसे इंसिडेंट्स वापस ना हो। तो मैंने आपको शुरुआत में 3 इंसिडेंट बताए, मोटर टैंकर बीटलगेस, मोटर टैंकर बाव मरीनर and motor tanker front Sunda. All of the 3 had vapors in them. In fact, एक oil tanker ballast condition में ज़्यादा dangerous होता है when compared to loaded condition with respect to explosion. I'm not talking with respect to pollution. Okay? मान लो आपने अभी freshly discharge किया पूरा oil. Now you want to start gas freeing or any operation. आपको कोई भी operation करना है which involves introduction of air into the tank. Suppose आपने अभी discharge किया है और आपका कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट का मतलब आपका जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज 13% बाय वॉल्यूम, एंड जो ऑक्सीजन है दैट इज समवेयर अराउंड लेट्स से 6% बाय वॉल्यूम। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डोंट गो इनटू टेक्निकलिटीज, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया। अगर इस मोमेंट पे मैं टैंक के ढक्कन खोल दूं और हवा अंदर डाल दूं या इनर्ट गैस को एयर मोड पे चला दूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ऑक्सीजन इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू रश टू 20.9%, सीधा जाएगा। सी वेयर इट इज पासिंग फ्रॉम, फ्लेमेबल जोन। अगर इस टाइम पे एक भी स्पार्क हो गया या एक भी चिंगारी उड़ी या एनीथिंग दैट is going to create a source of ignition, trust me, it is going to become like a live atom bomb. So अभी इस situation को avoid करने के लिए क्या कर सकते हैं? What we can do is, we can still put inert gas into the tank which is already inert. 6% by volume is inert, isn't it? हमने क्या देखा? ISGOT के हिसाब से जिस भी टैंक का ऑक्सीजन कंटेंट 8% से कम है वो टैंक इनर्ट है। ये टैंक ऑलरेडी इनर्ट है, ऑक्सीजन 6% है, but what I will do is I will still put inert gas into it. What happens when I put the inert gas? It is going to push out the hydrocarbon vapor. Remember, टैंक का जगह मारा मारी, मुंबई का घर, सेम कॉन्सेप्ट। एंड यू आर पुटिंग समथिंग
समथिंग हैज टू कम आउट. ओके, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में टैंक वाला कॉन्सेप्ट बताया था. नाउ व्हेन आई स्टार्ट पुटिंग इनर्ट गैस, इट इज गोइंग टू ब्रिंग द हाइड्रोकार्बन लेवल डाउन 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 डाउन. एक पॉइंट पे आके मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ. अभी इस पॉइंट पे जब मैं इधर से इधर आया, विच मीन्स पुटिंग इनर्ट गैस इनसाइड अ टैंक विच इज ऑलरेडी इन अ इनर्ट कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज पर्जिंग. व्हाट इज इट कॉल्ड? पर्जिंग. नाउ एट दिस पॉइंट इफ आई इंट्रोड्यूस फ्रेश एयर, अगर समझो अभी मैंने इनर्ट गैस जो है मेरा फ्रेश एयर मोड पे चला दिया या ढक्कन खोल दिए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू पास जस्ट टच करके, टच एंड गो, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डाइल्यूशन विथ एयर. व्हाट इज इट कॉल्ड? क्रिटिकल डाइल्यूशन विथ एयर. ये पॉइंट समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज आप जस्ट टच कर रहे हो. व्हाट इफ योर मीटर इज शोइंग रॉन्ग? व्हाट इफ यू हैव नॉट टेकन द रीडिंग एट करेक्ट लेवल? व्हाट इफ जिस लेवल पे आपने रीडिंग लिया है वहां पे यू आर ओके, यू आर जस्ट टचिंग, बट दूसरे लेवल पे इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो? कैन वी टेक अ चांस? नो. आपने ऑलरेडी देखा है क्या हालत होती है. सो टू अवॉइड इट हम और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे हाइड्रोकार्बन का, प्रॉपर पर्जिंग करेंगे. एंड नाउ व्हेन आई इंट्रोड्यूस फ्रेश एयर, इट इज पासिंग वेल क्लियर ऑफ द फ्लेमेबल जोन, एंड दिस ऑपरेशन ऑफ गैस फ्रीइंग इज द सेफेस्ट ऑपरेशन. सो पहले आपको पर्जिंग करना है, हाइड्रोकार्बन कंटेंट को कम करना है, एंड देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस फ्रेश एयर टू अवॉइड. इन दिस पॉइंट वेयर इट इज जस्ट टचिंग इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डाइल्यूशन विद एयर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि वी कैन नॉट अवॉइड फ्लेमेबल जोन. वी कैन नॉट अवॉइड फ्लेमेबल जोन इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन. से इसका मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन. सपोज आपका न्यूली बिल्ट ऑयल टैंकर है एंड यू आर गोइंग फॉर लोडिंग. ओके, राइट नाउ tanks have 20.9% oxygen. Right now what does your tank have? 20.9% oxygen. Finally when you load, as you know, tank का limited volume, जगह का मारा मारी and all that, final concentration, let's say it is coming to 30% of HC by volume. Okay, this is by volume. एंड ऑक्सीजन जब आप पूरा लोड कर लोगे, व्हेन यू फुल्ली लोड, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 6%. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. नाउ व्हेन यू हैव 20.9 going to 30 with oxygen of 6%, which is somewhere here, you will be passing through flammable zone, isn't it? So इसको कैसे अवॉइड करना है? इसको अवॉइड करना है सर, फर्स्ट ब्रिंग डाउन द ऑक्सीजन फ्रॉम 20.9 to 8% or 6%, and then you load, and then what do? You start loading. When you do this process of introducing inert gas into a tank which has 20.9% oxygen to reduce the oxygen content below 8%, this process is called inerting. What do we call this process? Inerting. So इस डायग्राम के साइड में देखो, ये हमारा डेंजर जोन है, यहाँ पे गया तो खलास. सो टू अवॉइड दिस, अगर आपको टैंक को गैस फ्री करना है, पहले हाइड्रोकार्बन नीचे लाओ फिर एयर डालो. अगर आपको लोड करना है टैंक, तो पहले ऑक्सीजन नीचे लाओ फिर लोड करो. ओके, अवॉइड दिस इज नॉट अवॉइडेबल इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन. सो लोडिंग में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग इन लोडिंग? First, your tank is in inert condition. I'm assuming you will inert your tank. Very, very important. The tank has to be in inert condition. Otherwise, it will pass through flammable zone. एक भी spark हुआ, एक भी चिंगारी उड़ा, खत्म. Your tanker is going to explode. First, bring the tanker into inert condition. It will reach flammable zone. अभी देखिए, flammable zone मतलब LEL और UEL के बीच की बात चल रही है. More than LEL, less than UEL is a flammable zone. It is going to reach flammable zone, and then ultimately mixture is going to become too rich. अब discharge कर रहे हो तो क्या हो रहा है? सबसे पहले mixture is too rich, coming to flammable zone, and then finally tank is in inert condition when the cargo is fully empty. So flammable zone unavoidable if you don't take care of the most important thing which is oxygen. Remember fire triangle में मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ऑक्सीजन है जिसका पैर हम तोड़ सकते हैं. Take care of oxygen on your ship and I promise you your ship is going to be absolutely safe. I hope आपको flammability diagram समझ आ चुका होगा. If you have understood, please like the video, share it with your friends, do subscribe to our channel, comment down if you have any doubts or any suggestions on which topics we need to make videos. We'll definitely consider them. I'm Captain Umang. Thank you for joining me on Nav Insider. Till next time, stay safe, sail smart.